नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर होशियारपुर से है। टांडा रेप और हत्या केस में दोनों आरोपियों का रिमांड 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। इससे पहले 2 दिन के रिमांड पर ये दोनों आरोपी थे और अब 3 दिन का रिमांड और बढ़ाया गया है। पुलिस ने दादा पोते को महज 7 से 8 घंटे के अंदर ही वारदात को अंजाम देने के बाद गिरफ्तार किया था। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और साथ ही बता दें कि बीबी जागीर कौर ने भी परिवार से मुलाकात की। कुल मिलाकर मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है और जो तमाम नेता है वो अब मिलने की तरफ बढ़ रहे हैं इस परिवार से। सोम प्रकाश जो होशियारपुर से एमपी है, उनकी तरफ से ये मुलाकात की गई है इस परिवार से। इससे पहले कांग्रेस के कुछ लोग यहां पहुंचे थे और साथ साथ जो स्थानीय विधायक है वो भी यहां आए थे। छब्बेवाल जो एक और कांग्रेस विधायक, वो यहां पहुंचे थे। 4 लाख रुपए का परिवार को फौरी तौर पर राहत भी उन्होंने दी थी। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप बीजेपी की बात करेंगे तो सांपला की तरफ से कहा गया कि 25 लाख रुपए का मुआवजा इस परिवार को दिया जाए, साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। तो बड़ी खबर अब ये कि इस पूरे के पूरे मामले में जो 2 आरोपी है उनका पुलिस रिमांड बढ़ चुका है। 3 दिन का ये रिमांड। ਤੌਰ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਟਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 2 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਟਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਸੂਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਛੁਪਾ ਨਾ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਉੱਧਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸੋ? ਹਜੇ ਮੈਟਰ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਅਗਲੇਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਲਈ ਟਾਂਡਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਬੇਲਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਵੀ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ घटना बारे की कहना? बहुत ही निंदनीय घटना जलालपुर टांडा हलके में जो होशियारपुर का एक पार्ट है उसमें घटी है। 6 साल की छोटी मासूम बच्ची जिसको फुसलाकर अपने घर लेकर रेप किया, उसके बाद जलाकर मार दिया। इतना राक्षसी वृत्ति के लोग ऐसा कर सकते हैं और बहुत ही निंदनीय है। कोई शब्द नहीं जिससे हम उसको कंडेम कर सकें। इससे हम सारे कलंकित महसूस करते हैं, सारा समाज कलंकित हुआ इससे, ऐसी घटना से। और ये बिहार से आए लोग, भागलपुर इनका इलाका है, जहाँ से आए हैं, सेवा करते हैं सभी गांव की और सभी को इन्होंने कलंकित किया है। जो 2 लोगों ने जिनको अरेस्ट किया गया है, मैं तो कहूँगा कि जल्दी से जल्दी इनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि ऐसा दोबारा ना हो। और इससे मैं शर्मिंदा हूँ, सारा समाज शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है जिसमें ऐसी घटनाएं घटती हैं। और सरकार की जिम्मेवारी है कि ऐसी घटनाएं ना घटें, लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करें। और इस पे जो लीडर दूसरे सूबों में जब होती बात वहाँ को भागते हैं, जहाँ अपने सूबे में जब होती है कोई आता नहीं है।
ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੀਡੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਇਆ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਿਲੀਫ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਨਿੰਦੀ ਘਟਨਾ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਦਿਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ फास्ट ट्रैक ट्रायल करके कठोर से कठोर सजा दे। न्यूज़ 18 ਲਈ टांडा तो दीपक बहल। तो केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश को आपने सुना, जो होशियारपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। टांडा में बच्ची के रेप के बाद हत्या के मामले में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को घेरा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल और प्रियंका को हाथरस से हमदर्दी है, पंजाब की बेटी से नहीं। उन्हें राजनीतिक यात्राओं पर जाने की बजाय पंजाब जाना चाहिए। वहीं निर्मला सीतारमण का कहना है कि इस मामले पर कांग्रेस की चुप्पी सवाल खड़े करती है। टांडा गांव में बिहार के दलित प्रवासी मजदूर के 6 वर्ष की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म के बाद उसको मार दिया गया। कैसी दर्दनाक और शर्मसार घटना है। राहुल गांधी पॉलिटिकल टूर पे जाते हैं, वो उसके बजाय टांडा पे जाना चाहिए, टांडा में जाना चाहिए, राजस्थान में जाना चाहिए। उनकी सरकारें हैं, वहां महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है और कैसे दुष्कर्म है वो देखते नहीं। ना राहुल गांधी गए, ना प्रियंका गांधी गई, ना कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कोई टिप्पणी की। टांडा गांव की दलित बच्ची 6 साल की दुष्कर्म की शिकार हुई और बिहार की बेटी वो हुई और उसके लिए हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सापला जाकर पीड़ित परिवार को मिले, लेकिन कांग्रेस जिनकी सरकार है उनका कोई भी उनको नहीं मिला। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या जहां आपकी सरकार नहीं है वहां अगर रेप होता है उसके खिलाफ आप भाई बहन गाड़ी में बैठते हुए हंसी मजाक करते हुए पिकनिक में जाने जैसे आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे? मगर होशियारपुर, क्योंकि उधर पंजाब की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप होशियारपुर के ऊपर एक भी बात नहीं बोलेंगे क्या? हर विषय में ट्वीट करने के लिए कूद पड़ने वाले राहुल गांधी जी, इसके ऊपर एक भी ट्वीट नहीं किया अब तक। 3 दिन, शायद 2.5 दिन हो गए। और कल बिहार में तेजस्वी यादव के साथ आप भी कैंपेन में गए थे, क्यों? आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव राहुल गांधी जी से नहीं पूछा कि बिहार के सुपुत्री उधर पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ये दुष्कर्म हुआ, उसके बारे में क्यों राहुल गांधी जी और तेजस्वी उधर से चुनाव के संबंधित संबोधन करते हुए इसके बारे में बोल नहीं सकते थे? तो प्रकाश जावड़ेकर से लेकर निर्मला सीतारमण को आपने सुना। टांडा रेप केस पर बीजेपी के बयान पर सीएम का पलटवार। जी हां, कैप्टन ने सीतारमण के बयानों को तर्कहीन बता दिया। बीजेपी नेताओं के बयानों का कोई आधार नहीं है, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह रहे हैं। हाथरस और टांडा की कोई तुलना नहीं है। हाथरस में पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। राहुल प्रियंका पर दिए बयान पर भी निशाना साधा। बीजेपी के बयान दलित विरोधी और महिला विरोधी भी है।
तो एक तरफ निर्मला सीतारमण है, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है। प्रकाश जावड़ेकर का बयान आपने सुना, सोम प्रकाश जो एमपी है होशियारपुर से और केंद्रीय मंत्री भी है, उनका बयान आपने सुना। और अब कैप्टन की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है जिसमें वो कहते हैं कि जो बयान निर्मला सीतारमण और बीजेपी नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं वो तर्कहीन है और यहां पर सीधे तौर पर महिलाओं के लिहाज से भी जो बयान दिए जा रहे हैं वो ठीक नहीं। हाथरस में पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से बीजेपी नेताओं पर अब निशाना साधा गया है। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के दिमाग का दुवालिया निकला हुआ है। मुझे हैरानगी इस बात की है कि उसको हाथरस की घटना के साथ जोड़ करके फिर मुजरिमों को बचाने की कोशिश करें। भैया, ये 4 ठाकुरों ने हाथरस में रेप किया था, वो सारे बीजेपी के रिश्तेदार थे और गरीब बेटी जुबान ना खोले, उसकी जुबान काट दी गई। उसके बाद वो दिल्ली में अस्पताल में दाखिल नहीं करवाने दिया और उन्होंने दम तोड़ा उस बेटी ने, तो वहाँ पे यूपी में उसकी डेड बॉडी गई। उसे के माँ बाप को पीट पीट करके ये जोगी जो मुख्यमंत्री यूपी के हैं उनके आदमियों ने भगा दिया और उन्हें संस्कार भी करने का मौका नहीं दिया। पुलिस वालों ने रात को 10 बजे उस गरीब बेटी का केरोसिन मिट्टी का तेल डाल डाल के उसको जला करके उसका संस्कार किया। आप बात करते हो बीजेपी वालों, आपके पापों का गड़ा भरा हुआ है। पंजाब में जितने मर्जी नाटक कर लो, जितने मर्जी ड्रामे कर लो, आप पंजाब विरोधी हो, किसान विरोधी हो, दलित विरोधी हो, देश विरोधी हो। तो ये आपने सुना कांग्रेस के विधायक राजकुमार वेरका को, जो सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। चलिए, पंजाब के बाद अब बात करते हैं उपचुनाव की। उपचुनाव हरियाणा में, जी हां, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हरियाणा की सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। हर सियासी दल चुनाव प्रचार में जुटा है और मतदाताओं को लुभाने में लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद बड़ौदा पहुंचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों से अपील की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह चुनाव आम चुनाव नहीं है। किसानों के मुद्दे पर लगातार बीजेपी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा घेरते नजर आते हैं। आज किसान का क्या हालात है, हरियाणा कहां से कहां पहुंच गया। आज किसान का क्या हालत है भाई, किसान बर्बादी के कगार पे खड़ा है। आज किसान को एमएसपी भी नहीं मिलती। और एक ईमानदारी से बताना, हमारे समय में किसान को कितना भाव मिला था भाई धान का? 6,000 तक मिला था। और गन्ना 117 था मुझे पड़ा। कहाँ छोड़ के गया था? 310। जबकि ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाइयां पर टैक्स था मेरे समय में, ना ट्रैक्टर पे था। और डीजल पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था किसान के लिए, था नहीं था। और पानी की काई ला दी थी भाई, बिजली की कमी नहीं छोड़ी थी, कारखाने ला दिए थे। ड्रेन का नंबर आया, ड्रेन में पानी चला दिया उन्हें। अब यूं कहें भाई हुड्डा ने ट्रेन में पानी कैसे चलाया, इस बात की इंक्वायरी कराएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में जींद में दुष्यंत चौटाला का किसान सभा और मजदूर संघ ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। साथ ही दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के विरोध का मजदूर संघ ने भी समर्थन किया। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने लघु सचिवालय को पुलिस छावनी में तब्दील किया। सरकार ना तो समय पर उनकी फसलें खरीद रही है, ना ही समय पर गिरदावरी की जा रही है। पिछले 10 दिन तक यहाँ धरना लगा हुआ है, उचाना में धरना लगा हुआ है। एक एक दाना खरीदने की बात करें, कल नरवाने की मंडी बंद हुई, अरे वे में बाजरा पड़ा, बाजरा बिकदा नहीं, उचाने की मंडी बंद हुई। वोट लेन तो सिर से ताड़ा आ गया और गिरदावरी आने की करंदा नहीं। इस तरह विरोध किया आपने? विरोध हमने काले झंडे दिखाए हैं और मेरा ख्याल तो रास्ता छोड़ गया। ईबजा बैठा हुआ तो आके दिखा का मांगे, इसका विरोध करांगे, पंजे जोड़ के करांगे। पानीपत में एक घर की खुदाई के दौरान नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। इस खबर के पीछे की मिस्ट्री ये है कि 1.5 साल पहले इसी घर का मालिक रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया था। पूरी खबर क्या है, मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखें। घर की खुदाई, मिला नरकंकाल।
कहीं वो लापता बेटा तो नहीं? क्या पत्नी ने रची साजिश? क्या है गुमशुदगी का सच? यह बिल्कुल फिल्मी मिस्ट्री है। सुराग तो मिला है, लेकिन सच से पर्दा उठना अभी बाकी है। पानीपत के विकास नगर का यह वो मकान है जिसकी खुदाई में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। इसके पीछे की मिस्ट्री यह है कि 1.5 साल पहले इसी घर का मालिक रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया था। रोती बिलखती इस बुजुर्ग मां को शक नहीं बल्कि यकीन है कि जो नरकंकाल मिला है वो उसके बेटे का ही है। तो यहाँ पर आया जी, मेरा भाई आया जी मेरे से छोटे वाला, और मेरा लड़का जी, वो मेरा लड़का खोदने लगा। तो वो मेरे भाई की घरवाली आई जी, उसने कस्सी खोस के मतलब फेंक दी जी। हमारे को छो में आए, मेरे उसको छो में आई जी गुस्सा, यहाँ से भाग जाओ। राज तो राज ही रह जाता अगर भतीजे ने अपने पिता को पूरी बात ना बताई होती। चाची का हाथ बटाने के लिए उसका भतीजा घर पर काम कर रहा था और जब उसने शौचालय के पास खुदाई की तो अचानक खोपड़ी बाहर आ गई, लेकिन चाची गीता ने उसे वहीं दफन कर दिया। 31 साल के हरबीर की शादी गीता से हुई थी और उसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन 1.5 साल पहले वो अचानक लापता हो गया। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला भी दर्ज किया था और अब जब घर में नरकंकाल मिला तो फिर पत्नी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। मेरे को 100 नंबर से यहाँ पे सूचना मिली थी कि इस तरह एक नरकंकाल मिला है खुदाई करते समय। तो मैं सूचना पाकर तुरंत यहाँ पे मौके पर पहुंचा हूँ। तो मैंने FSL टीम, SOC टीम बुलाई है, तहसीलदार साहब को बुलाया है और जैसे भी आगे कार्रवाई होगी वो हम कार्रवाई करेंगे। तो 15 महीने पहले हरबीर के संबंध में 340 का मुकदमा दर्ज हो रहा है। इसकी वाइफ गीता ने अपने पति की गुमशुदगी के बारे में लिखा था, जो FIR नंबर 40 है, सेक्टर 29 में। अब DNA जांच से ही ये पता चलेगा कि ये कंकाल किसका है और इसका हरबीर की गुमशुदगी से क्या संबंध है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे हरबीर की पत्नी का ही हाथ है। सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 पानीपत। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। देश भर में प्याज की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। प्याज ने लोगों की आंखों से आंसू निकाल दिए हैं। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि प्याज कैसे जायका खराब कर रहा है आपकी रसोई का। तकरीबन हर साल सर्दी के आगमन के बाद सब्जी को स्वादिष्ट बनाने वाली प्याज की कीमत बढ़ जाती है। तरह तरह के तर्क और तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। देश भर में प्याज इतना महंगा हो गया है कि लोगों के आंखों में आंसू ला दिया। जो कभी लोग 1 किलो प्याज खरीदते थे, अब 1 पाव खरीदकर ही संतुष्ट हैं। देश की बड़ी मंडियों में शुमार महाराष्ट्र के नासिक में भी प्याज की किल्लत हो गई है। वहाँ के व्यापारी की माने तो ऐसा होना कोई बुरी बात नहीं है। कुछ ले आओ, कुछ उसको कुछ फायदा नहीं है। अभी व्यापारी लोग माल लेकर स्टॉक करते हैं। अब ठीक है, उनकी कोई ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होगी, 4-8 दिन माल पड़ता होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दबा के रखेंगे, मार्केट में लाएंगे नहीं। ऐसी कुछ बात नहीं है। हम लोग कांदा फेंक रहे थे रास्ते पे, तभी हम लोग को पूछने वाला कोई नहीं था। 800 रुपये अभी मटन हो गए, सब जन जाते हैं खाने के लिए, उसको कोई पूछता है क्या? नहीं पूछता है। देसी के भाव बढ़ गए, लोग बोलते हैं 200 रुपये का लेने के लिए जाते हैं, लेकिन कांदा का भाव बढ़ गया तो वो लोग बोलते हैं ऐसा हो गया, प्याज इतना महंगा क्यों है। दक्षिण के राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु में भी प्याज की कीमत आसमान छूने लगी है। दरअसल बेमौसम बरसात ने फसल को बर्बाद कर दिया, जिसके चलते प्याज यहाँ महंगी हो गई। हर साल भी ये प्रॉब्लम होता था। महाराष्ट्र का कांदा आना तो बिकाना, वो माल क्या होगा, पूरा स्टॉक उधर होगा, उधर क्या रेट निकलता वो रेट से इधर हमें बेचने का या हमें रेट नहीं करने का। महाराष्ट्र का कांदा क्या आता वो उसके ऊपर हमें डिपेंड कांदा बेचने का। उधर 60 रुपये होता, 8 रुपये खर्चा आता, 70 पड़ता, रिटेल 80 बिकाती। सवाल है कि आखिर क्यों प्याज महंगा हो गया है। दरअसल इसके पीछे वजह अचानक हुई बारिश है, जिसने फसल को बर्बाद कर दिया। वहीं स्टॉक में रखा प्याज भी पानी के चलते सड़ गया। इतना ही नहीं, देर से प्याज की बुआई भी इस महंगाई की वजह बनी। नवरात्र में लोग प्याज कम खाते हैं, लिहाजा अभी प्याज की खपत उतनी नहीं है, लेकिन इसके बाद यानी दीपावली में इसकी कीमत में और तेजी देखने को मिलेगी।
उधर प्याज की बढ़ी कीमतों से परेशान लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने और प्याज आयात करने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको जरूरी सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, पर सबसे पहले डील हासिल करने के लिए बने रहें Amazon के साथ, जो दिन में 3 बार हॉट डील का ऐलान करता है। Amazon Great Indian Festival Happiness Upgrade Days live now. Amazon Great Indian Festival Happiness Upgrade Days live now. बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।